गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस मैम। ओके जी। Okay, 32 people have joined. We'll just start. Okay, so unit 1 is going on and we are at the lecture 7th with the topic OLAP. OLAP stands for Online Analytical Processing. Okay, किसी ने OLAP के बारे में सुना है पहले? Any formal definition that what type of tool is it? Yes or no? Quickly. No, ma'am. All right. ठीक है. So OLAP जो है हमारा, as we know that we are doing all of the related technologies to enterprise resource planning. So जो इसका नाम है पहले तो वही बता रहा है, एनालिटिकल प्रोसेसिंग, कि आपको अब अपना जो भी डेटा आपके पास है, यू हैव टू प्रोसेस इट एंड फॉर्म एन एनालिसिस फ्रॉम दैट डेटा via some tools, and that sort of data can be used by you to make any sort of decisions for your organization. अगर मैं बोलूँ आपको कि इस चीज को शुरू करने से पहले ओके I will show you some examples of data that can be used. ओके ये डेटा आप सभी को विजिबल है? ये शीट विजिबल है ना सभी को? यस मैम। ओके अब एनालिसिस बेसिकली होगा कैसे कि हमारे पास कुछ डेटा है। सपोज हमारे पास ये टेबल आ गया। इस टेबल में हमारे पास जितना भी डेटा है हम लोगों ने ईयरली डिवाइड नहीं किया, वी हैव डिवाइडेड इनटू क्वार्टर्स। ठीक है, हम लोगों ने पूरे ईयर को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। दैट मीन्स आवर 1 क्वार्टर इज कंसिस्टिंग ऑफ 3 मंथ्स, consecutive months. ठीक है, so we are having 2000 quarter 1, 2, 3 and 4, and then our year will changes on, and then we have several quarters. Based on these entries we have certain, our GDP is there. That we can simply imagine that certain quarter is there, and based on those countries that how they are performing in dollars, and what is their recession rate, when is the time when the recession have started and all. Basically this is not our concern. We just have to see that in this we can simply see that this data is in the form of metrics. Correct? In this metrics we are having one column headings here. We are having certain column headings here, and then we can have certain set of records available with us. Or I can simply say that if I am saying that this is a simple table. Now from this table, if I want to generate a matrix, this is actually a data frame or a table. If I want to generate a matrix from here, the matrix always says that you can move here
for a particular value column wise, and then further you can move row wise, and wherever your cell connects that will give you one sort of value. So if for an example I say that this 2001, 2 and so on, these values are actually on my column side, and I am having 012 as my serial number, and with the combination of 1 corresponding to year 2000 quarter 1, I am having a certain value of GDP into my data. So that type of data of any row and column combination where you can have n number of rows present, but any two columns are there, that can be represented in the form of a 2D matrix, isn't it? If I would say, if I am showing you this example, अब यहाँ पे भी मेरे पास क्या है, मेरे पास एक सिंपल डेटा है, ठीक है, जिसमें मैंने एक कॉलम को आई कैन कंसिडर एज माय एक्स एक्सिस, देन अनदर कैन एक्ट एज माय वाई एक्सिस, और उसके बाद जो भी मेरे पास थर्ड डेटा होगा, आई कैन जनरेट अ मैट्रिक्स दैट इज गिविंग मी डेटा बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ these cells, that if I want to traverse through a certain column and with respect to a certain row, that the combination of these two, wherever they are meeting, whichever cell they are ending up upon, that is going to give me the actual value of total revenue in that particular quarter for that particular city. तो अब हम लोग अपने टेबल्स को मैट्रिसेस में कन्वर्ट करेंगे बेसिकली ओलैप के अंदर। जब भी हम लोग ऐसे कन्वर्जन्स कर लेंगे तब हमारे पास क्या है, पूरा का पूरा डेटा कन्वर्ट हो चुका है हमारे मैट्रिसेस के फॉर्म में, एंड वी नो हाउ टू हैंडल एनी 2D 3D और एनी मल्टी डायमेंशनल matrices very well. We know how to apply operations onto this simpler data rather than applying any of the data in this complete table. तो अब अगर कंपेयर करें इस चीज को कि मेरे पास डेटा माइनिंग टूल्स थे, वो भी मुझे कुछ ऐसा ही डेटा दे रहे थे कि एक्चुअली मेरे पास एक टेबल है, टेबल के कुछ रिक्वायर्ड कॉलम में मुझे जाना है और वहां से एक एनालिसिस लाकर आई हैव टू जस्ट डिस्प्ले इट with either it can be using any analysis tools in the form of numbers, या फिर वो किसी ग्राफ या रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में हो सकता है। लेकिन ओलैप टूल जो है वो आउटपुट आपको सेम देगा, लेकिन इसका काम करने का तरीका डिफरेंट है। ये क्या है, मेजर क्या है, प्रोसेसिंग की फॉर्म में काम करता है। तो इसने अपने टेबल को मल्टी डायमेंशनल एरेज की फॉर्म में या फिर मैट्रिसेस की फॉर्म में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया, और ये फिर उन पर काम करेगा जो भी आपका रिक्वायर्ड डेटा है। तो बेसिकली आपके पास किसी भी फॉर्म में डेटा आ सकता है और आपको उसे कन्वर्ट करना है। अब बेसिक चीज ये है कि आपको ऐसे कौन से कन्वर्जन्स चाहिए। जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि बेसिकली यहाँ से जहाँ से ये चीज स्टार्ट हुई, मेरे पास एक शीट है जिसमें मेरे पास इस टाइप का डेटा है दैट यू हैव सर्टेन क्वार्टर्स, और आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। एक अदर शीट है जिसमें मेरे पास स्टेट, कौन सा रीजन नेम कौन से स्टेट को डिपिक्ट कर रहा है, उन दोनों का आपस में मैपिंग है, ठीक है। और एक अनदर मेरे पास, मैंने इसका व्यू क्रिएट किया इन दोनों चीजों को मर्ज करने के बाद, जिसमें मैंने अपने जितने भी क्वार्टर्स थे उनको मैंने चेंज कर दिया डिपिक्टिंग अ कॉलम्स डेटा। इट हैज एक्चुअली बिकेम द कॉलम नाउ। ये अभी कॉलम्स बन चुके हैं, और जितने भी मेरे पास स्टेट और रीजन के कॉम्बिनेशंस थे, दैट विद इन दिस स्टेट आई हैव दीज नंबर ऑफ रीजन्स अवेलेबल, और उन पर्टिकुलर एक रीजन के लिए मेरे पास इस टाइप का डेटा आ गया। और फिर मुझे, मेरी रिक्वायरमेंट थी कि मुझे इस तरह से जो भी डेटा आ रहे हैं इन पर कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग जो है अप्लाई करनी है। तो आपको आपके डेटा एनालिटिक्स टूल्स में बेसिकली यही चीज करनी है कि आपके पास एक टेबल है, आपने उसका व्यू चेंज कर देना है। आपके पास एक टेबल है, आपने वहां पर आपका कौन सा रो या कॉलम अभी प्राइमरी की एक्ट कर रहा है, यू हैव टू चेंज दैट टू सम अदर रो, ताकि आप उस पर अपने रिक्वायर्ड जो है डेटा मैनिपुलेशन जो भी करना चाहते हैं, क्वेरीज लगानी है, वो आप कर सकते हो। तो ओके, लेट्स इफ वी स्टार्ट विद दिस कि ओलैप, अब हमें समझ में आ गया कि ओलैप में आपको एक्चुअली करना क्या है, कुछ ना कुछ एनालिसिस होगा और आपको अपना जितना भी आपके पास डेटाबेस है, अब हम उस डेटाबेस की बात नहीं करते, एक्चुअली वी आर वर्किंग ऑन बिग डेटा नाउ।
we are working on data which is at the large scale, and that has been already divided into two types of data, which is one is the operational one, the current present data, and the another one is analytical data, that is keeping the record of the previous years. So that sort of data is available in my data warehouse, and what I want is I want to apply certain operations onto those things so that I get a certain analysis from them. So it says that OLAP can be defined in simply 5 words. That is, it is past analysis of shared multidimensional information. Now from here, that multidimensional information thing is clear to you, that why we are saying that any table that has been provided to us is actually multidimensional, because any of your table, if it is having more than two rows, more than two columns, sorry, more than two specified fields onto which that data has been taken, that means that data is actually multidimensional. Why? Because if I am converting that data into a matrices, it will convert into a 2D, 3D, 4D, and to n times of data. So that is why we have taken the term here multidimensional information. Shared. Why shared? Because all of that data is actually provided to different analysts or different persons, employees for the data entry. Whenever they are providing that data, different types of warehouses or different types of databases are actually handled by those users, but with the restriction that which user actually have the access to do what type of manipulation in that data. ये सारा डेटा जो है हमारे पास शेयर्ड जरूर है, लेकिन फिर भी उस पर रिस्ट्रिक्शंस हैं कि एक ए यूजर है वो इस डेटा को सिर्फ रीड ओनली फॉर्म में देख सकता है, एक बी यूजर है जो रीड एंड राइट कर सकता है, और एक सी यूजर है जो कि इसमें कुछ और मैनिपुलेशन ड्रॉप की या फिर परमिशंस ग्रांट करने की एडमिन राइट्स जो हैं वो रखता है। हो सकता है कुछ ऐसे यूजर्स हों जिससे उस डेटा का कुछ पर्टिकुलर पार्ट ही व्यू किया जाता हो, नॉट नेसेसरी द होल थिंग। तो ये सारा शेयर्ड डेटा है। जब भी हमारे पास शेयर्ड डेटा आता है तो वी हैव टू टेक इन कंसिडरेशन कि हमें इस डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी को या फिर जितने भी इसके एक्सेसेस हैं उन चीज़ों को मेंटेन कैसे रखना है। Next, the term we have was analysis. Analysis means anything that you can get out of the data, the knowledge, the actual knowledge that you can get from that information that can help you in making any business decision or providing any business logic or statistical analysis that is relevant to that business. Maybe that can be used by their professionals, by their top level management, or by their middle level management as well. Why we are saying fast is because we always offer in the data warehouses that every information that you have need to be processed so fast that it can actually give me the output within a lesser to lesser response time. ओके, आप लोग मुझे बता सकते हैं हम लोगों ने जो लास्ट टाइम किया था, हम लोगों ने जो चीज़ लास्ट टाइम की थी कि आपके पास वेयर हाउसेज आते थे, विच वेयर हाउस इज प्रोवाइडिंग मी द रियल टाइम एक्सेस। हम लोगों ने अलग अलग टाइप के वेयर हाउसेज डिस्कस किए थे जिनमें अलग अलग तरीके से ETL टूल्स वर्क कर रहे थे। उनमें से कौन सा वो टूल है जहाँ पर हमारे पास वो सारे के सारे वर्किंग जो है, प्रोसेसिंग है, वो रियल टाइम पे होती है। यस, क्विकली। मैम क्वेश्चन ना फिर से रिपीट करना एक बार। क्वेश्चन ये है
कि आपने लास्ट टाइम अलग-अलग तरह के डेटा वेयर हाउसेस पढ़े थे, उनके टाइप्स पढ़े थे, आर्किटेक्चरल टाइप्स। उनमें से एक टाइप ऐसा था जो कि आपको रियल टाइम डेटा रिस्पॉन्सेज जो है वो देता है। उसका नाम ही कुछ ऐसा था रियल टाइम के रिलेटेड। ओके, आई कैन लीव दैट थिंग टू यू कि आप लोग इसे सर्च कीजिएगा और देखिएगा कि कौन सा टूल है दैट इज देयर इन योर प्रीवियस प्रेजेंटेशंस। तो उस तरह का डेटा वेयर हाउस अगर मेरे पास होगा तो उसकी क्वालिटी थी कि जब भी उसके पास डेटा आ रहा है तो वो उसको, जो हमारे मेन प्रोसेस थे एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोड, वो ट्रांसफॉर्म और लोड जो था वो एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली परफॉर्म करता था, ताकि एक्सट्रैक्ट के टाइम पे आपके पूरे के पूरे सिस्टम को वेट ना करना पड़े कब आपका डेटा जो है वो ट्रांसफॉर्म हो और उसके बाद लोड हो। वो ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ही लोड करता था ताकि आपको रियल टाइम पे डेटा साइड बाय साइड अवेलेबल होता जाए। So that is providing us that fast in access to the information within lesser response time. ओके, उसके बाद हमारे पास आती हैं बिजनेस इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज। व्हाट इज दिस बीआई टेक्नोलॉजीज? कि जब भी आपके पास डेटा वेयर हाउसेस आ गए तो हमारे पास डेटा वेयर हाउसेस में बहुत ही ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में डेटा प्रेजेंट होता है। वेन एवर you are combining your data warehouses with any type of analytical tools, that analytical tool can be an OLAP tool or it can be your data mining tools. Either of these can be combined with your data warehouse. अब आपका warehouse जो है वो सिर्फ storage space नहीं रहा, अब वो कुछ ना कुछ process करके आपको output भी दे सकता है। That is known as business intelligence technologies. ये question generally एग्जाम में आ जाता है BI टेक्नोलॉजीज के बारे में। So this is nothing but a combination of your data warehouse along with any analytical tool. Either it can be your OLAP tool or your data mining tool. Okay, so where does this OLAP actually exist in your system, in your ERP? When we are talking about our data warehouses, we were talking about all of the ETL operations that we have to extract some of the information from the from the databases that can be of different type. Like here I am having a SQL server, some Excel sheet is there, and some MySQL data is there. So all of the data has to be combined somewhere, analyzed, and then it is going to generate certain data marts here. Now that data is already stored. After storage, what type of processing is involved? That is to be done by using OLAP cubes. Why we are using the term cube here? Because as we have said that we are talking about only dimensions of data. So this is a tube is a sort of three-dimensional data. So generally we take our data into three dimensions. How this we will see later. We will take our data into three-dimensional forming a cube and then we analyze the data or the things based on these cubes. So प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग के बाद इस डेटा को क्या है ओलैप क्यूब्स में कन्वर्ट किया जाएगा। फिर उन क्यूब्स पर आप जैसे भी प्रोसेसिंग फर्दर प्रोसेसिंग लगाओगे उसके बाद आपकी जो भी क्वेरीज हैं, जो भी आपको एनालिटिकल फॉर्मेशंस चाहिए, डायग्राम्स चाहिए, वो आपको रिक्वायर्ड डायग्राम्स जो है वो वहां से मिल जाएंगी। Next are OLAP applications. So where can we use this OLAP information? Firstly, it can provide us multi-dimensional view of data. This is we know that we can consider our data. If आप अभी इमेजिन कर लो कि मेरे पास मेरा डेटाबेस है, उसमें मेरे पास 10 रोज अवेलेबल हैं। सपोज हम क्यूब्स की ही बात कर रहे हैं। क्यूब मीन्स योर डेटा कैन बी इन three forms.
तो आपके पास आपको वहाँ से कुछ भी 3 के कॉम्बिनेशन से आपको अपना डेटा उठाना है। कोई भी रैंडम 3 कॉलम्स उठा के आप अपने नए क्यूब्स बना सकते हो और आप अगर चाहो उन कॉम्बिनेशंस को चेंज भी कर सकते हो। सो इट कैन प्रोवाइड यू दोज मल्टी डायमेंशनल डेटास एंड ऑल्सो ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा डेटा अपना 3D में ही लेके आना है। आप 3D टू 4D 5D कन्वर्जन्स भी कर सकते हो। अप टिल एनी एन डायमेंशन आप अपना डेटा जो है उसे व्यू कर सकते हो। नेक्स्ट इज टू सपोर्ट कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। अब क्या हो गया, क्योंकि हम लोगों ने जब भी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, आई हैव जस्ट एक्सट्रैक्टेड ओनली दैट पार्ट ऑफ डेटा विच इज रिक्वायर्ड बाय क्रिएटिंग अ क्यूब और बाय क्रिएटिंग अ व्यू ऑफ डेटा, एनी एन डायमेंशनल व्यू ऑफ डेटा। उसके बाद जब हमें वहां पर कोई भी प्रोसेसिंग करनी है, वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग जो है वो आपको ओलैप के अंदर ही वैसे टूल्स मिलते हैं जिनके थ्रू आप वो सारी प्रोसेसिंग कर सकते हो। जनरली वहाँ पे कुछ लाइब्रेरीज होंगी जहाँ पे आपके जितने भी मैथमेटिकल या लॉजिकल टूल्स हैं या ऑपरेशंस हैं, वो उनके फंक्शंस जो हैं वो अवेलेबल होंगे ताकि आप उन चीज़ों को एनालाइज कर सकें। टाइम इंटेलिजेंस का मतलब है नाउ वी आर मूविंग बैक टू दोज टू टाइप ऑफ डेटा विच आर स्टोर्ड इन डेटा वेयर हाउस, ऑपरेशनल एंड एनालिटिकल वन। मेरे पास दो टाइप का डेटा है, तो आपको वहां पर अगर टाइम इंटेलिजेंस यूज करना है, दैट मीन्स कि आपकी सेम फॉर्मेट का डेटा लेकिन टू अलग टाइम डायमेंशंस में पड़ा है। हाउ वी कैन कंपेयर दैट डेटा, how we can analyze from that data that what is our performance rate, what is our profit rate maybe. So these are three of the main applications from OLAP. Okay, so here those applications are actually explained that those algorithms can be formed to calculate the average or percentage growth. Further, your time intelligence is there where you can period over period you can make comparisons of your data. Hmm. So here comes the important part that if I'm having a multidimensional data here, so how can I take any multidimensional data versus our table that is actually stored in the data warehouse? So you can take any of the two columns from there and take it on your axis, and the combination of the two will give you the value of your third column that is present over there. So this will be actually a matrix for total revenue based on the name of the city and the quarter available. So ये आपको actually आपका total revenue बता रहा है आपके दो कॉलम्स के बेसिस पर. So this matrix is actually for your total revenue. So from here we can see that actually it gives us some sort of numeric measurements based on some dimensions, as we have seen in that application that we have time on one side and location on one side, and that is giving us the total revenue as a result of that matrix. So now the question is that which one is the best to represent that type of data, any relational table or a matrix? As we can see that for a user and for an analyst, it would be better if we are providing that data in this form. अगर हमारे पास इस फॉर्म में डेटा होगा तो यहाँ पर ऑपरेशंस इजीली लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा कहीं ना कहीं डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट आ जाता है, मैट्रिसेस या एरेज। जब हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर्स आएंगे तो यहाँ पर ज़्यादा हमारे पास कैपेबिलिटी होती है कि कॉम्प्लेक्स फंक्शंस हम ईदर बना सकते हैं या फिर अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, वेदर इन डेटाबेसेस हमारे पास बहुत कम नंबर ऑफ फंक्शंस हैं जो अवेलेबल होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर क्वेरीज जनरेट करनी पड़ेंगी। यहाँ पर हम फेमिलियर होते हैं कि हम अलग अलग तरह के फंक्शंस जनरेट करके कुछ लॉजिकल फंक्शंस भी जनरेट कर सकते हैं और उन्हें यहाँ पर इम्बेड कर सकते हैं। सो दैट कैन गिव यू अ सर्टेन
flexibility to generate such data and extract analysis from them. Okay, so if I am taking a 2D matrix, then what it requires that your two columns are going to define your two axes of that 2D matrix, and third column will be the resultant that is actually giving me the output for that matrix. If I am converting my data into a 3D data, that means I should be having three axes onto which I can analyze my data, and wherever those three axes are combining and giving me that 3D cube or subcube, that is my actual data of the fourth column that is there. So अब हमने क्या किया कि हम लोगों ने क्यूब लिया, इस क्यूब में हमारे पास, अगर मैं इसे बोलूं कि मेरे पास एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है और एक जेड एक्सिस है, ये मेरे पास तीन एक्सिस आ गए. वन इज टेकन एज द टाइम क्वार्टर्स, वन इज योर प्रॉपर्टी टाइप, देन वी हैव अ सिटी, और जहां पर भी हमें इनके कॉम्बिनेशंस देखने हैं वो हमें देंगे हमारे टोटल रेवेन्यूज. तो अगर मुझे देखना है कि क्वार्टर टू पर, if I am having a quarter two and city is Glasgow and the type is flat, so this combination is actually giving me this total revenue. तो एक्चुअली होगा क्या कि अभी जो आपको व्यू इस चीज का दिख रहा है 3D टाइप के डेटा का, वो सिर्फ जो हमारे पास ग्लासगो डेटा है सिटी के लिए, सिर्फ उसी का डेटा जो है वो विजिबल है. अगर अभी हम इस चीज को, अगर आप सपोज करो कि हमें जो इस रो में जो ये वाला पार्ट है इस क्यूब का, यहाँ का डेटा भी दिखता, तो दैट विल बी फॉर सिटी लंदन. एंड अगर हम इससे पीछे वाला डेटा देख सकते, दैट विल बी ऑफ दिस टाइप. सो दिस रिक्वायर्स अ 3D विजुअलाइजेशन टू अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ डेटा. अब इसी के साथ जैसे ही आप डायमेंशंस ऐड करते जाओगे, आपके डायग्राम्स और कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे, और वो क्या है, आपको और अच्छी विजुअलिटी चाहिए उस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए. फर्दर और हम क्या कर सकते हैं कि मेरे पास मल्टी डायमेंशनल ऑफ डेटा है, उससे मैंने क्या किया, अलग अलग क्यूब्स बना लिए जिनसे हम क्या है वो डेटा कैप्चर कर सके. अब अगर हम यहाँ पर देखें कि आपके पास सिटी, टाइप, क्वार्टर्स एंड देन रेवेन्यू इज ऑल्सो देयर, तो आपके पास ये एक डेटा था जिसमें सिर्फ चार कॉलम्स इन्वॉल्व थे. इन दिस पर्टिकुलर स्लाइस और इन दिस पर्टिकुलर क्यूब आई वुड से आपके पास चार कॉलम्स इन्वॉल्व हैं. अब मेरे पास एक फिफ्थ कॉलम आता है जो कि बोलता है व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑफिस. द ऑफिस नेम कैन बी B003, 005, 007. सपोज वी हैव दीज थ्री नेम्स. सो व्हाट वी से कि हमारे पास अलग अलग क्यूब्स बनेंगे अलग अलग ऑफिस के लिए, एंड दीज आर एक्चुअली अ पार्ट ऑफ अ ह्यूज क्यूब जो कि हमारा एक्चुअल में मल्टी डायमेंशनल डेटा है. तो आप इमेजिन कर सकते हो कि आपके पास ऐसे, दिस इज फॉर सपोज हमारे पास सिर्फ B1003 के लिए है, ऐसा ही एक और डेटा होगा विद दीज वैल्यूज टू बी डिफरेंट, ये वैल्यूज उसमें अलग अलग होंगी. फिर अगर हमने इन सारे डेटा को, इन सारे 3D डेटा को कंबाइन कर दिया, तो ये मुझे देगा मेरा एक्चुअल 4D डेटा, जिसमें मेरे पास फोर डायमेंशंस होंगी, सिटी, योर प्रॉपर्टी टाइप, योर क्वार्टर्स एंड योर ऑफिस नेम. And further it can be increased to any number of columns or any number of fields that you have in your data. Now what sort of analysis, okay, how can we actually generate those multiple datas that at 0D level we are having all of the fields of that table available with us. For 1D, if I am saying कि I am taking data only basis on time, only based on location, only based on type, or only based on office name, that will be my one type of data that can simply a list. कि अगर मेरे पास डेटा सिर्फ इसी फॉर्म में हो, या अगर मेरे पास डेटा सिर्फ इसी फॉर्म में है कि मैंने टाइम लिया,
I have taken time and I have extracted whole of this column from here. कि मेरे पास टाइम के कौन कौन से यूनिट्स अवेलेबल हैं. सिंपली दैट विल बी माई 1D डेटा वेयर आई एम हैविंग ओनली one type for the analysis. The second is 2D data that can be combination of any two. Here we can have combination of time and location, time and type, time and office, then location and time, location and office, and type and office. Similarly, we can move towards 3D, 4D to a number of types of or dimensions of data can be there. So this is how your multi-dimensional data is actually created. कि firstly आपको जनरलाइज करना पड़ता है कि आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जैसा एनालिसिस आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपके रिक्वायर्ड कॉलम्स कौन से हैं, फिर आप उनसे कितनी डायमेंशंस में डेटा जो है वो कैप्चर कर सकते हो. देन सपोज अगर मुझे कोई डेटा चाहिए था जो कि टाइम, लोकेशन और टाइप के ही बेस्ड है, then what I have to do with this rest of data? I will just create a data or a multi-dimensional matrices for time, location and type, and I can easily calculate or take my analysis back from there. अब एक और चीज कि अगर हमें अपने एक पर्टिकुलर टाइप को सब टाइप्स में डिवाइड करना है, विच इज योर डेरिवेशन ऑफ डेटा एक्चुअली, कि अगर मेरे पास सिटी है या टाइम आ जाता है. बेसिकली अगर आपके पास टाइम आता है, आप डेटा ले रहे हो किस फॉर्म में कि आपके पास सिटी है और टाइम है. अब सिटी को आप और किस फॉर्म में चेंज कर सकते हो. इस सिटी को आप नंबर ऑफ सिटीज को कंबाइन करके रीजन्स बना सकते हैं. आप नंबर ऑफ रीजन्स को कंबाइन करके ये भी देख सकते हैं कि कंट्रीज कौन सी हैं, कंट्री वाइज डेटा आ सकता है. फर्दर आप उसी सिटी को डिवाइड कर सकते हो उसके फर्दर एरियाज में, स्ट्रीट नंबर्स पे या फिर वहां पर जितने भी वेन्यूज अवेलेबल हैं, आप उस एरिया को उनके जिप कोड के अकॉर्डिंग भी डिवाइड कर सकते हो. तो ये सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं जिनके अकॉर्डिंग हम एक्चुअली डेटा को डिवाइड करेंगे. तो यहाँ पर भी हमारे पास कुछ ऐसा ही था कि पहले हमारा एनालिसिस सिर्फ रीजन नेम्स के अकॉर्डिंग हुआ था. फिर हमने क्या किया, हम लोगों ने एक कॉम्बिनेशन लिया. हमारे पास एक एक्चुअली एक डिक्शनरी अवेलेबल थी जहाँ पे लिखा हुआ था कि कौन कौन सी स्टेट के अंदर कौन कौन से रीजन्स आते हैं. हम लोगों ने उन दो चीज़ों को मैप किया और उसके बाद हम लोगों ने अपने डेटा को प्रेजेंट ही इस तरीके से किया कि वो सारा डेटा स्टेट वाइज प्रेजेंट हो गया. अब अगर यहाँ से हमें देखने से पता चल रहा है, अगर मुझे ऐसा कोई एनालिसिस करना है कि आपको 2000 क्वार्टर 1 का टोटल रेवेन्यू देखना है फॉर स्टेट अल्बामा ओनली, तो अब मुझे यहाँ से सिर्फ इतना टेबल मेरे कंसर्न में आ जाएगा. आई विल टेक a cube for this and I will simply apply my operations on it and I can calculate the maximum number, or I can take the actually the average or the total number which is required. जबकि अगर इसी चीज को हम लोग अपने इस डेटा में देखें जो हमारे पास यहाँ पर डेटा अवेलेबल था, तो वहां से उस चीज को एनालाइज करना या फिर वहां से इन्हीं चीजों को एनालाइज करके कैलकुलेट करना जो था वो बहुत डिफिकल्ट था. अब हमारे पास वो रो की फॉर्म में सारा डेटा अवेलेबल है. आई कैन इजीली कैलकुलेट दैट. सिमिलरली अब हमारा जो टाइम है, टाइम को हम बहुत अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. क्वार्टर्स जो है हमने एक टाइम देखा, पूरा का पूरा आपको ईयर देखना है वो आप देख सकते हो. आप लोगों को क्वार्टर को फर्दर मंथ्स में डिवाइड करना है, दैट इज पॉसिबल. कि पहले हम कॉम्बिनेशन ऑफ 3 मंथ्स ले रहे थे, मुझे चाहिए मेरा डेटा सिर्फ मंथ्स में डिवाइड हुआ हो, सो हम क्वार्टर्स को भी डिवाइड कर रहे हैं. अगर आप चाहते हो कि हमें मंथ्स भी नहीं लेने, आपको वीक्स में या डेज में डिवाइड करना है, वो भी हो जाएगा. अगर आप उन्हें सीजन वाइज डिवाइड करना चाहते हो, यू हैव टू जस्ट जस्टिफाई कि फ्रॉम विच मंथ to which month you are giving it a one season. You can divide it into that form also. तो ये जो हमारे आगे derivations होती हैं जो कि based on the problem आप उसे derive कर सकते हो. Okay, हाँ जी, are we clear up till this? Yes, ma'am. All right. Okay, here comes the interesting part of OLAP, जहाँ पर आपको OLAP के operations discuss करने हैं. Now the different operations are actually roll up,
drill down, slice and dice and pivot operation. I would consider them as a 5 operations, और हमें 5 operations मानकर क्या है आगे डिस्कस करेंगे. Slice and dice would be considered as the separate one. Okay, this is just a simple definition for each one. We will do it by using example. That for example, if I am having any OLAP database, आपके पास एक database था, आपने database में से अपना concerned cube जो है वो निकाल लिया. हम लोग simplest cube ले रहे हैं जिसमें क्या होगा आपके पास 3D data जो है, actually आपके पास 4 columns हैं, लेकिन 4 columns have turned up into a 3D data because 3 of those are giving you the dimensions and fourth one is your actual data. कि आपको इन तीनों कॉलम्स के बेसिस पे कॉम्बिनेशन पे फोर्थ जो आपका कॉलम होगा उसकी वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी. अब मुझे इस पर ऑपरेशंस लगाने हैं अलग अलग. सो मेरा डेटा किस फॉर्म में है दैट आई हैव सर्टेन व्हीकल्स, आई हैव टाइम इन टर्म्स ऑफ क्वार्टर्स एंड आई हैव लोकेशन इन द फॉर्म ऑफ सिटीज हियर. तो अब हमें क्या करना है, फर्स्टली वी वांट टू ड्रिल डाउन. ड्रिल डाउन का मतलब है that means that you have to go one step downwards in any of the dimensions of this matrix or array. जो भी आपके पास डायमेंशन है आप किसी भी एक डायमेंशन को उठाओ. अगर आपको लगता है इस डायमेंशन को मैं और फर्दर पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ, ड्रिल डाउन मीन्स टू डिवाइड इट इनटू अ फर्दर पार्ट. हम लोगों ने इसका एक डायमेंशन उठाया टाइम. टाइम को हमें पता है कि क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर मेरे पास क्वार्टर्स हैं हम उनको मंथ वाइज, डे वाइज, वीक वाइज और स्प्लिट जो है वो कर सकते हैं. तो हम लोगों ने इसे फर्दर मंथ वाइज स्प्लिट किया. उससे उससे क्या होगा कि आपका क्यूब जो है, क्यूब की डायमेंशंस टोटली चेंज हो गई. सो टू चेंज दोज डायमेंशंस बेस्ड ऑन योर प्रॉब्लम, दैट इज वन ऑफ द प्रोसेस नोन एज ड्रिल डाउन प्रोसेस. तो हम लोगों ने क्या किया, कोई एक सिंपली कोई भी एक हमारा डायमेंशन उठाया एंड इफ इट कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सर्टेन पार्ट्स देन वी हैव डिवाइडेड इट. अब अगर मेरे पास ये सिटीज भी हैं वो आगे रीजन या पिन कोड के अकॉर्डिंग डिवाइड हो सकती है, आई कैन डू दैट ऑल्सो. अगर मेरे पास कार्स, बसेस, जो भी व्हीकल्स हैं वो आगे मॉडल नंबर के अकॉर्डिंग या टाइप ऑफ इंजन के अकॉर्डिंग डिवाइड हो सकते हैं, वी कैन डिवाइड दैट ऑल्सो. तो ये आप किसी भी तरीके से अपने डेटा को क्या है ड्रिल डाउन कर सकते हो. सो ड्रिल डाउन इज बेसिकली मीन्स दैट यू आर हैविंग any certain dimension, if you want to split that dimension into further sub parts. Okay, contrary to the drill down, we have roll up one. roll up में आपको क्या करना है, we have to move one step forward. आपके पास, आपको मान के चलना है कि मेरे पास splitted data है, मुझे उन डेटा को कंबाइन करके एक फॉर्म बनाना है. जैसे हमने देखा था कि हमारे पास अलग अलग नंबर ऑफ रीजन्स थे, रीजन्स को कंबाइन करके हम लोगों ने स्टेट्स बना ली. तो उस तरीके से हमें कंबाइन करके अपना जो है डेटा फॉर्म करना है. वो हम इस फॉर्म में भी कर सकते थे कि अगर मैं सारे क्वार्टर्स को कंबाइन करके 1 ईयर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, या फिर अगर मैं अपने ईयर को सेमी ईयर मानूं, 6 मंथ्स का टाइम पर मानूं, देन दैट कैन बिकम माई 2 क्वार्टर्स एज वेल, 2 सेमी ईयर्स एज वेल. ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर जो कन्वर्जन किया है दैट इज बेस्ड ऑन लोकेशन, कि हमारे पास पहले सिटी नेम्स अवेलेबल थे, हम लोगों ने उन्हें कंट्री नेम्स के साथ चेंज कर दिया. So actually we have combined two type of data that we have and we have converted into a one single data. तो आपके पास अगर हम इसको माने कि ये मेरे पास एक टेबल है, इस टेबल में मेरे पास दिल्ली और कोलकाता के लिए पहले 2 सेपरेट सेल्स थे. सपोज इन 2 सेपरेट सेल के अंदर आपका रेवेन्यू आता था, रेवेन्यू ही था, यहाँ पर टोटल रेवेन्यू हमने लिखा हुआ था. टोटल रेवेन्यू अगर हम मुझे अब इसको रोल अप करना है, देन माय रिजल्टेंट हियर will be the addition of these two. So these type of operations are depending on the type of data that is present in your multidimensional matrices, कि आपके वहाँ पे कैसा डेटा है, कि आप उस पर मैथमेटिकल फॉर्मूलाज लगा सकते हो या लॉजिकल लगा सकते हो. दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द क्वेश्चन, बट द
थिंग इज कि आपको रोल अप के टाइम पे अपनी कोई भी एक डायमेंशन को आपको क्या करना है, बाय कंबाइनिंग सर्टेन वैल्यूज ऑफ दैट डायमेंशन वी हैव टू जनरेट अ सिंगल वन। हाँ जी, एनी डाउट इन दीज टू, ड्रिल डाउन एंड रोल अप? मैम लास्ट वाले में है। लास्ट वाले में है इन रोल अप। तो मैम आपकी आवाज नहीं आ रही शुभम। मैम इससे पहले था ना, जो पहले था ड्रिल डाउन वाला, उसकी बात कर रहे हैं। ड्रिल डाउन में है, उसमें ठीक उसमें है। मैम हाँ जी मैम, उसमें आपने कहा था ना कि जब जैसे मैम इसमें मतलब वैसे मैम इसमें फोर्स सिटीज के नाम दिए हुए हैं, तो आपने हम्म। कहा था कि बल्कि हमें इसमें थोड़ा जैसे कि नीचे आना पड़ेगा, तो मैम उसके आगे बता दो थोड़ा सा, वो नहीं अच्छा, अच्छे से आया अब समझ। देखो हम लोगों ने यहाँ पर सिंपली क्या किया है कि मेरे पास क्वार्टर था। क्वार्टर वन मीन्स योर मंथ ऑफ जनवरी फेब्रवरी एंड मार्च। क्वार्टर टू मीन्स अप्रैल मई एंड जून एंड सो ऑन, हम लोग दिसंबर तक जाएंगे कवरिंग द 4 क्वार्टर्स। हम लोगों ने इस क्वार्टर वन को एक्सपैंड किया और हम लोगों ने इस वन कॉलम के रिस्पेक्टिव ये 3 कॉलम्स बना दिए, जनवरी फेब्रवरी एंड मार्च। फिर हमारा जो टू था इसके रिस्पेक्टिव आगे 3 कॉलम्स बनेंगे, अप्रैल मई एंड जून, और ऐसे ये डेटा क्या है और एक्सपैंड होता जाएगा। ड्रिल डाउन का मतलब है आपको अपने डेटा को एक्सपैंड करना है और ज्यादा। रोल अप का मतलब है सिंपली कि आपको कंप्रेस करना है। कि अगर मैं अब इस ऑपरेशन को ऐसे लगा दूं कि दिस एरो इज इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन, सो जनवरी फेब्रवरी मार्च अप्रैल मेरे पास पहले थे, इन्हें कन्वर्ट करके मैंने कंप्रेस करके Q1 बना दिया। दिस इज रोल अप ऑपरेशन। एंड इफ आई एम मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन दिस विल बी माय ड्रिल डाउन ऑपरेशन। और इसी चीज को अगर मैं रीजन पे लेके जाऊं तो हम लोगों ने क्या किया कि मेरे पास, आप सपोज करो यहाँ पे ये वाली एग्जांपल भी आ सकती है, यस दिस वन, कि मेरे पास इनिशियली इंडिया और पाकिस्तान करके हमारे पास 2 वैल्यूज थी कंट्रीज की। देयर कैन बी एन नंबर ऑफ कंट्रीज हियर। हम लोगों ने क्या किया, इफ आई एम मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एरो है, ऐसे कन्वर्जन हो रहा है, तो मैंने क्या किया, इंडिया को डिवाइड कर दिया दिल्ली एंड कोलकाता में, पाकिस्तान को डिवाइड कर दिया इस्तांबुल एंड कराची में। तो हम लोगों ने क्या किया, एक्चुअली वी हैव एक्सपेंडेड आवर डेटा, we have expanded the number of columns that are available there in our data. So इस चीज को हम लोग बोलेंगे that this is drill down. If we are compressing it into a certain form, कि मेरे पास पहले 2 वैल्यूज थी, अब उसको कंप्रेस करके मैंने सिंगल वैल्यू बना दिया है, that will be my roll up operation. अब क्लियर है? हाँ जी मैम। ओके जी। सो नेक्स्ट इज द डाइस ऑपरेशन। यस, अब यहाँ पर क्या होगा कि मेरे पास पूरा डेटा है, लेकिन मुझे उस पूरे स्लाइस में से एक सब स्लाइस जो है, या फिर स्लाइस नहीं बोलेंगे इसे, कि मेरे पास ये पूरा क्यूब है, इस क्यूब में से मुझे एक स्मॉल पीस ऑफ क्यूब जो है वो एक्सट्रैक्ट करना है। जब भी मैं एक स्मॉल पीस ऑफ क्यूब की बात कर रही हूँ, दैट मीन्स अगर क्यूब है तो उस क्यूब में तीनों के तीनों डायमेंशंस होने चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पास तीनों डायमेंशंस आ रहे हैं, दिस इज अ क्यूब। लेकिन जितने मेरे पास नंबर ऑफ यूनिट्स थे, पहले मेरे पास टाइम के लिए 4 यूनिट्स थे, आइटम्स के लिए 4 यूनिट्स थे, और लोकेशन के लिए भी 4 यूनिट्स थे। जब मैंने कन्वर्ट कर लिया, नाउ आई एम हैविंग lesser number of units than the original one or than the previous one. So that means this is a subcube that has been generated from this one. तो इस चीज को बोलते हैं हम लोग डाइसिंग। दिस कैन बी बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया और पैरामीटर्स। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिया कि अब आपका क्राइटेरिया ये हो गया कि आपको एक सब क्यूब जनरेट करना है जिसमें लोकेशन सिर्फ दिल्ली और कोलकाता है, टाइम क्वार्टर्स जो हैं Q1 और Q2 ही आए, और आपकी जो आइटम्स हैं, व्हीकल्स हैं, वो आपके कार और बस ही आने चाहिए। तो हम लोगों ने एक्चुअली क्या किया, जो आपका ये डेटा है, ये आपके 4 बॉक्सेस, उसके बाद ये जो आपके 4 बॉक्सेस हैं,
और हम इमेजिन कर सकते हैं अगर इसे 3D में एज्यूम करें तो इसके लोअर एंड पे जो 4 बॉक्सेस होंगे, जो हमें यहाँ से एक बॉक्स मिलता है वो बॉक्स हमने एक्सट्रैक्ट करके यहाँ लिखा है. So this dicing is known as to extract a subcube from the given problem or from the initial cube that you have. अब इसी के साथ हमारे पास एक और चीज आती है विच इज स्लाइसिंग. स्लाइसिंग इज डिफरेंट कि अब हमारे पास हम लोगों ने डाइसिंग में क्या किया था, हमारे पास डायमेंशंस चेंज नहीं हुई, dimensions are same, location, time, item and revenue, all dimensions are same. We have reduced the number of items in per dimension. हर dimension में जितने भी items हैं उन्हें reduce कर दिया. This reducing amount can be any. ये ऐसे हो सकता है कि दिल्ली, कोलकाता और कराची ले लें, Q1, Q2 और Q4 ले सकते हैं और कार और बस ले सकते हैं. This could be any. लेकिन मुझे 3 dimensions जो है वो मेंटेन करके रखनी है. ऑन द अदर हैंड स्लाइसिंग में आपकी डायमेंशंस कम हो जाती हैं. वहां पे आपने क्या किया, सिर्फ लोकेशन और आइटम्स रखा और जो आपका बेसिक टाइम यूनिट था वो कांस्टेंट हो जाएगा. आप यहाँ से अज्यूम करो कि हम लोगों ने इस Q1 टाइम को फॉलो किया. Q1 इज फॉलोइंग दिस वन. ठीक है, इस चीज को फॉलो करते हुए अगर आप अज्यूम करो कि मैंने इस पूरे के पूरे क्यूब को यहां से ब्रेक कर दिया फॉलोइंग दिस लाइन, अगर इस सारी लाइन से मैं ब्रेक कर दूंगी तो जो भी मेरे पास ये डेटा आएगा इसी को मैंने आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया. तो ये आपको बता रहा है एक तो आपकी लोकेशंस प्लस आपका ये वाला डायमेंशन. ये डायमेंशन एक्चुअली कौन सा है, आइटम्स का. और आपका जो एक टाइम का डायमेंशन था वो Q1 कांस्टेंट हो गया. तो स्लाइसिंग आपका एक डायमेंशन बिल्कुल कांस्टेंट कर देगा कि आपके पास जितना भी ये डेटा है वो Q1 के लिए है, लेकिन Q1 के लिए अलग अलग आपको ये अवेलेबल है, अलग अलग बाकी की डायमेंशंस जो है वो अवेलेबल है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डाइस एंड स्लाइस. कि डाइस में आपके पास डायमेंशन सेम रहती हैं, आइटम्स इन द डायमेंशन कैन बी डिफरेंट और जनरली लेस देन द इनिशियल वन, इसलिए हम उसे सब क्यूब बोलते हैं. और स्लाइसिंग में आपके पास होगा यू हैव रिड्यूस द डायमेंशंस देन द इनिशियल वन. आपने डायमेंशंस कम कर दी, आपके पास अगर पहले 3D में डेटा था, सपोज आपने उसे 2D में कन्वर्ट कर लिया. दिस इज जनरली डन फॉर द एनालिसिस पर्पस, कि आपने बस इसे एनालिसिस के लिए किया था कि क्योंकि अब मुझे किसी ने बोला कि आपको Q1 लिखा है, यहाँ पर हमारे पास डेटा में था 2000 Q1, ईयर 2000 का Q1 जो है आपको उसी के सारे रेवेन्यूज को टोटल करना है. तो एक्चुअली मुझे वहां पर स्लाइसिंग ऑपरेशन चाहिए. मैंने सिर्फ इतना पार्ट ऑफ डेटा जो मुझे चाहिए था उसे निकाला, यहाँ पर प्रेजेंट किया और जितने भी मेरे पास रेवेन्यूज आएंगे वो मैं बेस्ड ऑन कार सारे इनका टोटल करूंगी तो कार के टोटल रेवेन्यूज आ जाएंगे, बस के टोटल रेवेन्यूज आ जाएंगे, ट्रेन के टोटल रेवेन्यूज आ जाएंगे और प्लेन के आ जाएंगे. और ये सारा जितना मेरे पास रिजल्टेंट आता है इट सम कैन गिव मी द टोटल रेवेन्यू फॉर क्वार्टर Q1 फॉर रिस्पेक्टिव ईयर 2000. तो एक्चुअली इस तरीके की टेक्निक्स जो है वो आपकी OLAP के अंदर यूज होती हैं टू परफॉर्म एनी टाइप ऑफ एनालिसिस. द लास्ट वन इज पिविट. लास्ट में हमारे पास पिविट आता है, लेकिन ये पिविट एक्चुअली ये सब पार्ट है स्लाइस का. कि हम लोगों ने क्या किया, वी हैव टेकन अ स्लाइस आउट ऑफ दिस गिवन क्यूब एंड अगर मैंने उस स्लाइस के ऊपर ट्रांसपोज ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर दिया. ट्रांसपोज ऑपरेशन एक्चुअली क्या करता है, हाँ जी किसी को पता है ट्रांसपोज ऑपरेशन? हम रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देते हैं और कॉलम्स को रोज में. एग्जैक्टली आपको क्या है, आपने अपना जो डेटा है उसे डायमेंशन सेम है, डेटा सेम है, लेकिन आपने क्या है उसकी विजुअलिटी चेंज कर दी. तो हम लोगों ने अभी यहाँ पर भी वही चीज की है कि अब आपके लोकेशंस आपके डिफरेंट एक्सेस पे हैं और आपके आइटम्स जो हैं वो डिफरेंट एक्सेस में हो गए. तो आपको जनरली पिवट के अंदर पहले एक स्लाइसिंग करनी है, देन यू हैव टू टेक ट्रांसपोज ऑफ इट और यू कैन say that you have to change the view of that slice so that it can provide you a certain different thing.
अब ये करने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, क्योंकि जनरली डेटा तो सेम ही है। क्योंकि जब हम लोग अलग अलग एनालिसिस टेक्निक्स करते हैं, तो आप अभी यहाँ पर देख सकते हो कि मेरे पास जनरली यहाँ पर कॉलम्स मुझे बताए है इन्होंने, लेकिन मेरे ये जो रो का डेटा है वहाँ पे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ये बोल्ड में डेटा है, उसके बाद मेरे पास कुछ जो है नॉर्मल डेटा अवेलेबल है। तो जनरली जितने भी एनालिसिस टूल्स हैं वो आपके रो मेजर ऑपरेशंस परफॉर्म कर लेते हैं। कैसे? क्योंकि सपोज हम मान लें कि जब भी किसी ने यहाँ पर एक फंक्शन बनाए तो उन्होंने बोला कि आप लोग हमेशा क्या कर सकते हो कि आप अपने कॉलम पे अगर आपको लगाना है, मैं लिखूं कि इस डेटा फ्रेम का नाम है डीएफ, मैंने लिखा डीएफ राउंड ब्रैकेट्स के अंदर 2004 Q4, मतलब इस डेटा फ्रेम के डायरेक्टली आप 2000 Q4 कॉलम जो है वहां पर जाइए डॉट सम। तो इसका मतलब कि आप यहाँ सर पूरे डेटा फ्रेम से आपका कंट्रोल 2004 पर आ गया, एंड आपको 2004 के नीचे जितना भी डेटा मिलता है आपको सिंपली इसका सम कर लो, एवरेज कर लो, वहां से मैक्सिमम वैल्यू है वो निकाल लो, डॉट मैक्स डॉट मिन डॉट एवरेज डॉट स्टैंडर्ड डेविएशन। आपको जो हमारी लाइब्रेरीज हैं वो सारे ऐसे ऑपरेशंस देती हैं, लेकिन वो हमेशा स्पेसिफाइड होते हैं टू अ सर्टेन डिमेंशन, जो कि यहाँ पर जनरली हमें मिलता है पाइथन के अंदर कि आप कॉलम स्पेसिफिक ऑपरेशंस जो है वो कर सकते हो। अब सपोज अगर मुझे चाहिए कि मुझे तो ये चाहिए कि एक्सेस या अरब, ये जो हमारे पास रीजन नेम्स हैं, मुझे इस फॉर्म में इनका रिजल्टेंट चाहिए, इस फॉर्म में इनका एडिशन चाहिए, या फिर कोई भी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन चाहिए। तब हमें क्या करना होगा? सपोज इफ आई चेंज द व्यू ऑफ दिस थिंग कंप्लीटली, कि मेरे जो ईयर्स हैं वो इस फॉर्म में आ जाएं और जो स्टेट और रीजन है वो कॉलम्स बन जाएं। सो आई कैन सिंपली से कि आप डीएफ पे जाओ, देन यू हैव टू गो टू एल्बामा एंड देन अरब, अरब में के अंदर जाकर डॉट सम, फिर आपको वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। तो इसीलिए क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या फिर जो भी हमारे डेटा एनालिटिक टूल हैं वो एक ना एक डायमेंशन स्पेसिफिक होते हैं हमेशा, वो आपको दोनों डायमेंशंस के डेटाज नहीं देते, दूसरे डायमेंशन के डेटा भी अवेलेबल होंगे पर दैट इज क्वाइट अ ट्रिकी वन। और इसलिए आपको वहां पर एक पिवट ऑप्शन दिया जाता है ताकि आप अपने पूरे के पूरे डेटाबेस को जैसे चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हो, जस्ट एज अ व्यू, और उसके बाद आप वहां से डेटा जो है वो कैप्चर कर सकते हैं। Okay, so that is the main concern, that why these pivots are being created. Okay, so we are done with OLAP tools. किसी को कोई confusion है इसमें? Yes, anyone? हाँ जी, किसी को किसी चीज में कोई डाउट हो तो बताइए, अदरवाइज वी आर डन विद द लेक्चर। ओके, सो आई गेस किसी को कोई डाउट नहीं है। आप लोग यहीं पर वेट करिएगा अभी फॉर द अटेंडेंस।